I said good afternoon. Good evening, sir. Okay, good Good evening. evening. You can switch on your camera if you want. Okay. So yes, Lakshendra Yadav. I think I know you. Yes, sir. Lakshman and rest of the students, switch on your camera. Okay. Priyanka Bhagel. What's your name? Your name is appearing over here, Priyanka Bhagel. आपका एक्चुअल नाम क्या है? क्या बता रहे हैं आप? Your voice is not clear. Okay. Lokesh. Good. Okay. How many students are here? Let me see. Okay. Danish Ansari, Yes, sir. Jyotishna. Okay. Jyotishna Kumari, Krish Verma, Kush Kaushik, Lakshendra Yadav, Nidhi Kumari, Priyanka Baghel, and Vaibhav Gupta. Okay. So let's start from Danish Ansari. Danish, from where you are? Danish. Danish. Let's have an introduction. हाँ? पहले आप हमें जाने आप और फिर अपना भी जो इंट्रोडक्शन दें. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ. आई एम रोहन. आई विल टीच यू सोशल साइंस ओवर हियर. ओके. Social science, GK. Both the subject will be covered up by me. तो यस, अब आपकी बारी. आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. ओके. तो दानिश अंसारी. Am I audible to you, Danish? Beta, can you hear me? Sir, my name is Danish Ansari. Yes. Which school? Siddharth International Public School. Siddharth International Public School. Okay, Danish. Good. The next one is Jyotishna Kumari. Good evening, sir. Some problem. Yes, Jyotishna, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर बीच बीच में कट रही है. Okay, okay. From which school you are, Jyotishna? सर केवी खिचड़ीपुर. Which? Sorry, pardon. सर केवी खिचड़ीपुर. Good. Okay, Krish Verma. Krish Verma. गुड इवनिंग सर. Good evening. किस स्कूल से हैं आप बेटा? RSKV नंबर 2. RSKB number 2. Good. Kush Kaushik. Kush Kaushik. Yes, sir. Okay. किस स्कूल से हैं आप? Little flower. लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल और शिवाजी पार्क. Shivaji Park. ओके. गुड. कुश. लक्षेंद्र यादव. Yes, sir. ओके. My name is आपका Lakshan Yadav, sir. स्कूल कौन सा बताया था Sir, आपने? sir, Vanasthali. गुड. निधि कुमारी. निधि कुमारी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. आप कौन से स्कूल से बेटा? From which school you are? सर Pardon? सर RPV सुरंगल विहार. Okay, very good. प्रियंका भागेल. ओके. बात हो गई. वैभव गुप्ता. Sir, वैभव good गुप्ता. evening, sir. गुड इवनिंग. From which school you are, वैभव? RPVV Suranmal Vihar. वेरी. तो
Today we will start with a easy chapter of geography, India size and location. है ना? India size and location. You might have heard of this chapter, or you might have studied this chapter earlier also. है ना? पढ़ा है सभी ने? Do everybody know about this chapter? Everyone over here. आप सभी को Sir, पूरा- let tell. Yes, Lakshan, you were saying something. Sir, थोड़ा थोड़ा पता है. थोड़ा थोड़ा आता है आपको? ओके, गुड. थोड़ा थोड़ा ही सही आ जाएगा. और भी बाकी लोग बताइए कैसा है आपका ये चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन. आई थिंक योर टीचर हैव कवर्ड अप दिस टॉपिक, है ना? आपके टीचर कंप्लीट करा दिया है ना? रेस्ट ऑफ योर Yes, sir. आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन, नॉट फ्रॉम एनी सिंगल वन. सभी लोग आंसर sir. कीजिए. Yes, sir. पढ़ा दिया. Yes, sir. Okay. So, how many of you think that you are very good in this chapter? Means कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि he or she knows good in this chapter, he or she has a command over this chapter. कोई ऐसा बच्चा है? Don't worry, I will not. Sir, every video has faced. Let me know that how much you know. That's why. Kush, don't worry, I will not ask question. Answer. You can reply. Kush. Okay. Nidhi. Nidhi Kumari. Yes, sir. है ये चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन? ठीक ठाक है, पढ़ा है, थोड़ा बहुत आता है. Yes, sir. ओके. किसी बच्चे ने लिखा है कि मेरा कैमरा और वीडियो फ्रीज है, वीडियो फ्रीज हो गया और वॉइस फ्रीज हो गया. ये सभी के साथ ऐसा? सर थोड़ी देर पहले हुआ था, अब तो वॉइस क्लियर है. अच्छा, सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब किसी एक के साथ ही है या सभी के साथ है? सर सबके साथ है. अच्छा, फ्रीज हो गया था बीच में? ये सर हो गया था सर लेकिन थोड़ी Yes, पहले. sir. Yes, sir. चलिए, चलो ठीक है, अब हो जाता है क्योंकि नेटवर्क इशू होते हैं. चलिए, कोई ऐसा बच्चा, वही मैं पूछ रहा था, कोई ऐसा बच्चा जो कि ये कह सके कि नो सर, आई नो नियरली 80% ऑफ दिस चैप्टर. दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर. कोई भी ऐसा बच्चा है? 80% में भी हाथ नहीं खड़े करोगे आप लोग? चलो 70% में आते हैं. 70% में कोई हाथ तो खड़े करो. 60%. लक्षेंद्र नो 60%. गुड लक्षेंद्र, आपने ट्राई किया. बाकी लोग बताइए. ओके, चलिए ठीक है. नेक्स्ट टाइम अब जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आई होप दैट आप सभी लोग हैंड रेज करेंगे और कहेंगे कि सर आई नो. ठीक है, अ लॉट इन दिस चैप्टर. यस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को भी? सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आई थिंक अब विजिबल हो रहा होगा मोर. यस सर. अब दिख रहा है ये Yes, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? Yes, यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start. We will start a very easy chapter, an important chapter. Okay, India size and location. So India size and location में particularly we will come across overall size of India.
and the location on globe and important terms and terminologies related to it. ठीक है, हम लोग वही करेंगे. And these are very important. These facts and figures are very important for your examination. ठीक है. Make sure that you learn all these facts and figures in order to get full marks. Because in competition में अगर आप बैठोगे, then you will find that maximum question, whichever means maximum questions are based on data in preliminary stage. Okay, preliminary stage में data किस पे based होते हैं? Facts. स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वो Yes, sir. इंडिया साइज एंड आप लोग एक नोटबुक बनाएंगे सोशल की. ओके, सोशल की क्या बनाएंगे? नोटबुक, जिसमें जो भी लिखवाया हाँ, जाएगा. उसमें लिख रहा हूँ. हाँ, लक्षेंद्र, आई थिंक यू नो. तो ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट you should also know that you should also have a separate notebook of social science, जिसमें जो भी कुछ कराया जाएगा आप उसमें नोट डाउन करेंगे और उसको अपने साथ रखेंगे याद करने के लिए. मैं जितना भी कंटेंट में कराता हूँ, ठीक है, सब आपके एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो आपका CBSE का हो चाहे आपके GSTSC का हो. आप लोग 9th में हो, लेट मी टेल यू दैट इफ यू आर इन दिल्ली देन यू विल बी eligible for this examination, GSTSC, Junior Science Talent Yes, sir. Search Examination. It's Yes, Junior sir. Science Talent Search Examination in which you will find यहाँ पे GK पूछा जाता है. ठीक है, I will particularly discuss GK because I will teach GK over here. So it will be of 50 marks. कितने नंबर होंगे? 50 marks. Okay, and it is let me tell you that one of the toughest portion of this paper, GSTSC examination, is GK. Okay, because it stands for general knowledge. तो जो अभी ये हाल ही फिलहाल में देखा गया कि 35 तक ही चले गए बच्चे, अदरवाइज 30 तक ही सीमित रहते हैं. ही नहीं है किसी का जो टॉपर है GSTSC का, मैं उसका बता रहा हूँ. ठीक है, तो it will not be a cup of tea. ठीक है, that whenever you will like you will. ठीक है, मैं उसको बताऊंगा कैसे होगा क्या होगा. Now come to the point. तो इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो अब I think you all know that if this is the entire globe, है ना, अगर ये entire globe है तो ये वाला पार्ट ये हेमिस्फीयर है, ग्लोब जियोइड से. ठीक है, ये ओवरऑल हेमिस्फीयर है. तो ये कौन सा होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये कौन सा होगा? Southern Hemisphere. ये मुझे लगता है सभी बच्चे जानते हैं. तो इंडिया इज पार्ट Yes, ऑफ sir. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न. Northern Hemisphere. Northern. Sir, your mic has freezed. entirely lies in northern hemisphere. In which hemisphere? Northern hemisphere. Northern Hemisphere. Okay. अब नदर्न हेमिस्फीयर में पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न है. ठीक है, बट यू विल राइट नदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज योर बुक सेज. अब इसमें नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो अब इसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है. अच्छा, एक बेसिक चीज और भी आपसे पूछनी मुझे. आई थिंक यू ऑल नो दैट व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना? यू ऑल Yes, नो sir. लैटिट्यूड एंड
longitude you studied in your earlier classes. So let me draw, though my drawing is not very good, but still I'm trying my best to do this on Paint tab. Okay, so somewhere around this. Okay, right. This one is also like this. Okay. Okay. So this one is North Pole and South Pole. So this one, जो ये parallels हैं, so what we will call this? This is a latitude or a longitude? Latitudes. These are latitudes. Who told this? Latitudes. पहले किसने बोला था ये Latitude. latitude? Sir, me. What's your name? Yash Verma. Yash Sharma. Very good. It's latitude. क्या है ये? Latitude. Very good. So how many latitudinal lines are there on globe? How many latitudinal lines on there is there on globe? 179. How many? 179. Okay. 29. Okay. लिख लो. Total latitudinal lines on globe is 179. फिर next ये कुछ बना रहा हूँ. Okay. अब इसमें भी यही है कि थोड़ा सा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा, फिर भी काम चल जाएगा हम लोगों का. आई थिंक सभी लोग पहचान रहे होंगे कौन सी लाइन है. Longitude. वेरी गुड. The longitudes. हाँ, ये सबसे पहले किसने बोला था लॉन्गिट्यूड? Sir, Jyotishnu. ज्योतिष ने. वेरी गुड. तो दिस वन इज लॉन्गिट्यूड. क्या है ये? लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये 1360 है टोटल. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप देखो, तो ये मैंने आपको जो बता दिया 0 डिग्री, तो यहाँ पे एक होगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे होगा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ. ये क्या है बताना जरा. 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. ये अगर मान के चलें ये वाला बोलते ना, Triangle. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम सुना? क्या कहेंगे इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Tropic of Cancer. हाँ, और नीचे वाला आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ. Tropic of Capricorn. वेरी गुड. Capricorn. क्या नाम है आपका? नाम बताइए. लक्ष्मण. वेरी गुड. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नॉर्थ इसलिए कि इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ इसलिए बिकॉज इट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर. दैट्स ऑल. है ना? नॉर्थ इसलिए क्योंकि मैंने लिखा है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. नॉर्थ इसलिए बिकॉज इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पे साउथ इसलिए दिस लाइट इट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर. टोटल लॉन्गिट्यूड का लाइन आई टोल्ड यू 360 डिग्री. 360 टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन. तो अब ये बात हो गई. ठीक है, थोड़ा बेसिक. There are 360 longitude in globe. सर आपका माइक बार बार फ्रीज हो जाता है. I will try my best to draw the entire map of India. आप लोगों को लग रहा है कि सर ने सही बनाया? बताइए. Yes, so ऑलमोस्ट लग रहा है. ठीक है. Yes. थैंक्स. Sir. मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ी मेरी फिगर वगैरह थोड़ा सा वीक. तो ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट. और फिर एक आपका ये वाला. सॉरी, ये सही नहीं बना.
ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट और आपका एक होगा ये वाला पार्ट। तो अब ये बताओ विच वन इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, विच वन इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर एक्सटेंट की बात की जाए तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ ये क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, बताओ। कहाँ से कहाँ? ये this one, कौन सा एक्सटेंट है? सर ये लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। वेरी सर गुड। लैटिट्यूड। क्योंकि अगर देखो ग्लोब पे अगर हमने इंडिया ऐसे बना दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तो क्या होगा, लैटिट्यूड ही होगा ना, और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यस सर। तो ये Yes, sir. लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। ठीक है, क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया के क्या है देख लो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, टू 37 डिग्री हियर you will write 37 degree 6 minute north. Okay, 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. Why north? Because India lies in northern hemisphere, है ना, इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। अब ये नदर्न में भी देखोगे तो यहाँ से फ्रॉम हियर, यहाँ से इक्वेटर, ये ईस्टर्न वाला साइड है और ये वेस्टर्न वाला साइड है। तो लॉन्गिट्यूड हम ईस्ट में देखेंगे, दैट इंडिया लाइज पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ का तो हम लोगों ने लैटिट्यूड निकाल लिया, अब लैटिट्यूड आपका लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न साइड से होगा। तो अब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अब ये दो बचा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखें तो 7 8 6 जानते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट 25। ईस्ट। ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। कौन सा एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। longitudinal extent, very important for your NTSC. You will find that this kind of question has been asked multiple times in NTSC examination. Okay. In class 10th you will be eligible to sit for NTSC examination, National Talent Search examination, which happens throughout the India and state wise. Okay. First of all you will enroll yourself in a state or a UT, फिर उसके बाद then all India examination will be conducted by NCERT. So in that you will find that social science is of 40 marks. कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में आपके 9th के भी कंटेंट होंगे प्लस 10th के भी कंटेंट होंगे। साइंस आपको मालूम है कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स। फिर आपका मैथ्स होगा, मैथ कितने का होगा, 20 मार्क्स का। ओके, ये तो एक पेपर है आपका सैट, एक दूसरा पेपर होता है मैथ, इसमें आपका रीजनिंग होगा, क्या होगा, रीजनिंग, जो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 100। समझ में आया? चलो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, आप सभी ने लिख लिया आई थिंक, है ना? शुड आई रब दिस नाउ? क्या मैं अभी रब कर दूं? हाँ या ना बताओ, सभी ने कर लिया हो तो मैं सर एक मिनट, आप ये एनटीएस, हाँ ये एनटीएससी मत नोट करना, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, यू शुड नो दिस। कंटेंट जब बना रहे हो तो कंटेंट में ये मत, मैंने आपको इसलिए बता दिया टू मेक यू अवेयर दैट social science will also play a vital role in overall this competition. Don't take it as a cup of tea. What happens, students are in a habit of taking social means a very cup of tea. Okay, then think that okay, social याद कर लेंगे, we will be able to solve questions or we will be able to write answers, और ज़्यादा टफ नहीं है। But you will find certainly in a competition that social is very important. Sorry. Now I think I should rub this. Yes, Yes sir. sir।
एवरीवन से यस। ठीक Yes, है, sir. जब कर दें। Yes, sir. लो। अब इसमें पहले तो मैंने लिखा है इंटायरली इट इज इन नदर्न हेमिस्फीयर, तो अब इसमें थोड़ा और भी लिख लो। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर अगर longitudinal extent 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east, tropic of cancer। ये लोकेशन की ओवरऑल बात हो रही है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, कंट्री और है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा। Indira Point. It was submerged in 2004 tsunami. It was submerged in 2004 tsunami. Okay. So Indira Point is a part of Great Nicobar. Great Nicobar Island में पाया जाता है। में स्थित है, पाया जाता है, स्थित है Great Nicobar Indira Point located on Great Nicobar. आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर आप अपनी वॉइस से थोड़ी हाई कर लीजिए क्योंकि सब बैकग्राउंड से बहुत सारी नॉइस आ रही है। ओके, नाउ अब वॉइस क्लियर है आपको? यस सर। यस अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट Yes, sir. ये भी देख लो कि यहाँ पे एक चीज आपको और भी बतानी थी, याद रखिएगा बस, टू गुड टू नो। पहले जो आपका अर्थ था, ठीक है, अर्लियर द अर्थ अपीयर लाइक दिस। एक सी था, बड़ा था, उसका नाम था पैंथलस, और एक लार्ज लैंड ब्लॉक था, उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया एंड पैंथलस। ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये पैंजिया ब्रोक आउट इनटू टू पार्ट्स। ये पैंजिया क्या हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट में डिवाइड हुआ, दिस फर्स्ट पार्ट, इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और दूसरा पार्ट जो अदर गोंडवाना लैंड। अदर आपका गोंडवाना। Sir, your mic and video is freezed. लक्ष्य, घोष, और कौन कौन से बच्चे हैं? आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी बता रहा हूँ मैं?
निधि, ज्योत्सना। सर आपकी वीडियो बार फ्रीज हो जाती है माइक के साथ, यस सर। इसलिए आपकी वॉइस नहीं आती। अच्छा, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस Yes, सर आ रहा है। sir. Yes, यस sir. You can सर। ask questions. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चिराग, आई थिंक अभी नए बच्चे Okay, कुछ no आए doubt. हैं, कुछ नए बच्चे भी आए हैं। कौन आया है? चिराग सिन्हा, आपने अभी ज्वाइन किया है चिराग? चिराग, आर यू देयर? चले, चिराग से बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लोकेशन के बारे में डिस्कशन हो गया। नाउ वी विल मूव टू, शैल आई रब दिस नाउ? मैं इसे मिटा दूं अब? सर एक मिनट। Yes, sir. Yes. Yes, चलो, sir. जिन्होंने नहीं किया फटाफट फटाफट कर लो। एक और भी बात है, इंडिया का जो ओवरऑल शेप है वो जियोइड है, ठीक है? शेप ऑफ इंडिया जो है वो कैसा है? सॉरी, अर्थ का, नॉट इंडिया, अर्थ का शेप ऑफ अर्थ जियोइड, याद रखिए। लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी बुलाते हैं, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बुलाते हैं। सर जो हमारे अर्थ की जो बीच वाली वो है लॉन्गिट्यूड, हम उसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं ना? हाँ, 0 डिग्री। चलिए, अब मैं आता हूँ कंटेंट पे। नाउ आई एम रबिंग दिस आउट, ओके? यस सर। अब आते हैं साइज पे। नाउ वी विल मूव टू साइज, ओके? तो साइज में अगर हम देखें तो हियर वी विल डिस्कस द ओवरऑल साइज ऑफ होम, साइज ऑफ पॉट इन दिस। तो साइज में देखें तो ओवरऑल जो लैंड मास है इंडिया का 3.28 मिलियन, ओके, स्क्वायर किलोमीटर। इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद एरिया की बात की जाए, किसकी? एरिया की। टोटल एरिया अगर आप देखें तो 2.4%, 4 भी कहा। 2.4%. हाँ, 2.4% क्या? उसके बाद क्या? ऑफ द टोटल geographical Geographical area of the area world. of world. 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका क्या है? टोटल एरिया ऑफ। ये सब देखो कंटेंट पूछा जाता है एनटीएससी में, डोंट टेक इट वेरी इजी, ठीक है? और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी इसको लिखें, ओके? जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी इसको लिखते रहिए, ताकि आपका एक नोट्स प्रिपेयर होता चले साइड बाय साइड, ताकि कभी ऑब्जेक्टिव यस टाइप ऑफ सर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर पाए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो, Yes, सर। sir. हाँ, तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया is the 7th largest country in the world. एरिया के टर्म्स में इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अब लार्जेस्ट कौन सा है? आर सी यू Russia. सी बी ए आई, आर सी यू सी बी ए आई। आर स्टैंड्स फॉर, आर स्टैंड्स फॉर Russia. रशिया, सी स्टैंड्स फॉर Canada. Russia. Canada. Canada. कनाडा, यू स्टैंड्स फॉर युगांडा।
USA. सर C stand for? कैलिफोर्निया। नहीं। China. China. Sir, China. China sure. Yes, Yes, sir. sir. यस सर, सर चाइना। B stands for? Brazil. ब्राजील। Sir, Brazil. A stands for? ऑस्ट्रेलिया। Australia. I for? India. India. तो 7th पे आ गया ना? यस सर। 7th पे आ गया, समझ में आया? लिख लो इसमें RCUCDAI, ठीक है। हालांकि लार्जेस्ट और फिर 7th वाला ही पूछते हैं, बाकी तो पूछते नहीं, फिर भी इन केस अगर पूछ लिया जाए सो व्हाट यू विल डू, तो आपको ये लिख लो, शॉर्ट वे ऑफ मेमोराइजिंग इट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैंड बाउंड्री। ओवरऑल लैंड बाउंड्री अगर देखोगे इंडिया की तो इट्स 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। फिर उसके बाद कोस्टल लाइन, कोस्ट लाइन या कोस्टल बाउंड्री इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, कितना है? So 7,500, 7,516.6 kilometer. ठीक है। इट्स 7,516.6 किलोमीटर। किलोमीटर। अब आप लोग अगर मैप देखो तो आपको मैप कुछ ऐसे दिखेगा इंडिया का कोस्टल एरिया। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक अगर आपको मैं पूछूं तो ये पेनिनसुला है ना? ये Yes, sir. पेनिनसुला हम इसी को बुलाएंगे, ये सराउंडेड बाय Allah. 3 वाटर बॉडी। यहाँ पे Yes. 3 वाटर बॉडी में यहाँ पे कौन सा है? अरेबियन सी है, आप जानते हैं। अरेबियन से बे ऑफ बंगाल। ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और नीचे क्या है? Indian Ocean. वेरी गुड, इंडियन ओशन। नीचे क्या है? इंडियन ओशन, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक, ऑल ऑफ यू नोइंग विल हैव नॉलेज ऑफ दिस, है ना? Yes, sir. तो ये वाला पार्ट हो गया। तो peninsula, they can ask in your means teacher can ask in your examination in CBSE particularly that what is peninsula, that those area which is surrounded by 3 water bodies, simple. Now next, should I rub this now? हटा दूं अब इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई Yes, डाउट sir. है? किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा बताओ, यहाँ पे लक्षद्वीप यहाँ पे है या यहाँ पे है, ये बताओ। इन वेस्टर्न साइड Sir, और left ईस्टर्न साइड? side. Left सर side. वेस्ट साइड है अरेबियन से। The western side. Yes, ठीक है, somewhere here you will find लक्षद्वीप आइलैंड। और यहाँ पे क्या? अंडमान एंड निकोबार, निकोबार। ठीक है। ये लिख लो कॉपी में, दिस साइड Nicobar अंडमान एंड Island. निकोबार एंड इन दिस साइड यू हैव लक्षद्वीप। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शैल आई रब दिस नाउ? यस सर। Sir, अब यहाँ पे देखोगे, हाँ बोलो। wait. ओके, लिखो। हो जाए तो बता दो फटाफट। Sir, done. डन? किसी को कुछ पूछना है? सर पिछले वाले पेज में सर जो No, आपने sir. वो बनाया था पेंजिया एंड पेंथुला, सर उसमें आपकी वॉइस फ्रीज हो जाती थी सर, वो समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, रुक जा बताता हूँ। पेंजिया और पैंथलस में मैंने ये बताया था कि ओवरऑल मैंने ये बताया था ये पूरा अर्थ मान लें तो पहले क्या था कि एक लार्ज लैंड ब्लॉक था जिसको नाम था पैंजिया, पी फॉर पैंजिया, और एक लेक सराउंडेड बाय अ बॉडी, वाटर बॉडी नोन एज पैंथलस। ओके, तो हुआ क्या, ये पैंजिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया।
एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड, मैंने यही बताया था, गोंडवाना लैंड। तो इंडिया इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। यही बताया था। इसके बारे में और भी डिस्कशन होगा, बट वो हमारे दूसरे वाले चैप्टर में, ज्योग्राफी के दूसरे वाले चैप्टर में डिस्कशन होगा, ठीक है? ओके सर। क्या नाम है दूसरे वाले चैप्टर का? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर नेक्स्ट देखें तो अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है जो आपको समझना है अच्छी तरीके से। ये भी लगभग बन ही गया है ना? मैप जैसा लग रहा है इंडिया के? हाँ तो बोल दो। यस सर। चलो, यस सर। तो अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे और यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री, यहाँ पे स्पेस है, अच्छा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो मुझे बताया, यहाँ पे बताया मैंने आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ओके? तो अब इसमें अगर आप देखो तो एक चीज आपको डिफरेंस दिखेगी, एक चीज आपको गौर करोगे तो दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक बता सकता है कोई कितना किलोमीटर अगर पढ़ा है तो? यहाँ से यहाँ तक 3,214. 3,214 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 3214, यही है, और ये 2933 किलोमीटर, सही है? 33। सही है ये। अब देखो डिग्री का डिफरेंस देखते हैं। डिग्री देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ पे है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6। तो इसमें अगर 30 ऐड कर दें ऑलमोस्ट, ओके, तो 8 में अगर 30 ऑलमोस्ट ऐड करें तो 37 अराउंड 6 आ जाएगा, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली, है ना? तो नियर हम लोग 37 तक पहुंचेंगे। 68 में भी अगर 30 ऐड कर दें ऑलमोस्ट तो हम लोग 97 तक पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? यस सर। तो हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं, लैटिट्यूडिनल एंड longitudinal extent is nearly 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है आपको? इसके बाद हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे सर एक बार मैंने ये बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, अगर आप देखें तो 30 अगर ऐड करें लगभग तो 37 तक पहुंचेंगे। 8 में अगर आपने 30 ऐड कर दिया 8 में तो कितना हुआ? 38, ठीक है? एकदम फ्लैट अगर देखें तो 38 डिग्री 4 मिनट ऐसे आप बोल दोगे, बट लगभग मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब नियरली 30 डिग्री, ओके? और फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अगर देखें तो नियरली 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर नियरली 30 डिग्री, ओके? क्या लिखा है हमने? 30 डिग्री। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है, डिस्पाइट दिस नॉर्थ साउथ distance is bigger than east west। दिख रहा है आपको? Why? यस सर। इससे दिख रहा
3214 किलोमीटर है और ये 2933 किलोमीटर। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? कैन एनी वन ऑफ यू आंसर दिस? दैट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, तो इसको आप क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप देख कराएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। अब देखिए, को फ्रेम करना है। ये मैंने अगर लगभग जैसा पूरा सर्कल तो नहीं बन पाया है, बट लगभग। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को मैंने बताया कि इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो आपने अगर मैथ पढ़ा है तो दो पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस सेम होता है हमेशा। यस सर। पढ़ा है सभी बच्चे ने? यस सर। यस सर। ओके, तो पैरेलल्स हमेशा के डिस्टेंस सेम होते हैं, तो लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी बुलाते हैं। ओके, और लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन। तो मेरिडियन आप देखो, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो मेरिडियन देखो थ्रू आउट द ग्लोब क्या स्ट्रेट है? नो सर। मैक्सिमम डिस्टेंस दो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड is on equator. Equator पे देखोगे that they have the maximum distance between them. But आप जैसे ही ग्लोब की तरफ जाओ, सॉरी पोल की तरफ जाओगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और पैरेलल्स के साथ में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है। तो होता क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स एंड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन वेरीज अक्रॉस द ग्लोब। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियंस varies across the globe. Okay, so that's why there is a difference in distance between north south and east west, or you can write in this way also. That's why north south distance is bigger or is more, not don't write bigger, you can यहाँ पे more, ठीक है, more appropriate one. So that's why north south distance is more than east west. लिख लोगे आप सभी लोग? यस सर। सभी बच्चे बताएं yes, then only I can move forward. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो, सदर्न मोस्ट आपका स्टेट, अगर आपका पूछा जाए वेस्टर्न मोस्ट, ओके, so this one is western side, this one is eastern side. तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा स्टेट आपका? गुजरात। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका क्या है? गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है आपका? असम। असम। किसने कहा आपको असम? अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका गुजरात है एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश है। अच्छे से लिख लो, ओके राइट इट सर। डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हमने अभी बताया कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नियरली 30 डिग्री। कितने का बताया मैंने? 30 डिग्री। मतलब एक ये अगर लॉन्गिट्यूड मान लें तो लॉन्गिट्यूड जो है कि ऑलमोस्ट 360, ये आप जानते हो कि अपने एक्सिस पे भी अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, तो इसमें एक पूरा रोटेशन करने में, ठीक है, अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स। तो इसको इस तरीके से लिखो, मैंने शायद पहले बताया है। टोटल लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस ऑन ग्लोब कितने हैं आपके? 360। तो अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कवर अप दिस 360 डिग्री, और यू कैन राइट 360 डिग्री इक्वल्स टू 24 आवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको हम 1 डिग्री अगर निकालना हो तो 24 अपॉन 360 ऐसे लिखेंगे और आवर्स को मिनट में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? यस सर। 60 मिनट से कर देंगे ऐसे। आवर्स को अगर हमने मिनट में किया यस सर। तो 0 यहाँ से गया, 0 यहाँ से गया, 6 6 जा 36 है ना, फिर 6 4 जा 24। सफोर। हाँ सॉरी 6 4 जा 24, यस।
तो 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ टेक्स 4 मिनट, याद रखिएगा। 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ टेक्स 4 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो मैंने कहा कि टोटल कितने हैं ईस्ट से वेस्ट? टोटल लॉन्गिट्यूडनल डिग्री कितने हैं? 30 डिग्री। 30। ठीक है, तो 30 डिग्री रोटेट करने में कितना होगा? 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 विल बी 120 120 120 मिनट। 120 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? 2 आवर्स कह सकते हैं। यस सर। तो आप समझ लो ईस्ट से वेस्ट, सनराइजेज इन द ईस्ट। तो सबसे पहले सनराइज कौन दिखता है हमारे यहाँ इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे बाद में Yes, sir. गुजरात। तो गुजरात। सनराइजेज इन द ईस्ट, तो अब यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, जो है कि देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ओके, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का क्या है? समय की कमी। ठीक है, तो उसको लिखो कैसे होगा, देखते हैं। समझ में आ रहा है सभी को जितना भी मैंने बताया अभी तक? यस Yes, सर। किसी बच्चे का कोई डाउट? Anybody have any kind of doubt? Can ask me. नहीं? सर हाँ, सर ये आपने जो क्वेश्चन लिखवाया था डिस्पाइट दिस नॉर्थ साउथ, सर आप उसका हिंट दोबारा दे सकते हैं? एक्चुअली की डिस्टर्बेंस वजह से मुझे कहीं जाना पड़ा आई था। थिंक आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ ओके सर। कि पैरेलल्स हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रिमेन्स सेम, ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम ऑन ग्लोब, वेयर एज ऑफ मेरिडियन इट वेरीज अक्रॉस द ग्लोब। Okay, it is maximum at equator and minimum on poles. So that's why there is a difference between the distance, or that's why north-south distance is more than east. Okay, ओके सर। you will find the better statement over there, written over there in your bus, but the main concept है वो यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक, सर next। अब देखोगे तो 2 आवर्स मैंने बता दिया। तो टाइम लैग, राइट इट, टाइम लैग, टाइम लैग कितने का है? तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश कितना है? 2 आवर्स। जैसे अगर 4 बज रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि अगर 4 बजे यहाँ पे सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कब होगा? 6 बजे। 6 बजे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पढ़नी थी आपको, इससे मुझे ड्रॉ करना होगा लगभग वही। एक लगभग, यहाँ पर 82 डिग्री, हालांकि मैथ में जब कराऊंगा तो भी होगा, 30 मिनट ईस्ट। लाइन सीधी नहीं जा रही है, बट सीधी रहेगी। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये थोड़ा सा लाइन और इधर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, यहाँ पे आपको मैंने कितना बताया था? कितना है? कितना बताया था बताइए? 68 डिग्री सर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे कितना बताया था? 97 डिग्री 97 25 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। ईस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा, Yes, sir. ईस्टर्न साइड में। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मैंने बताया कि इन दोनों में यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, मतलब टोटल लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अप्रॉक्स 30 डिग्री है। तो 2 आवर्स का गैप है। तो अब मैंने बताया यहाँ पे अगर 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पे 6 बजे हो रहा है। तो इन मतलब ऐसे समझने के लिए वॉच ऐसे ही दिखाएगा, तो क्या किया जाता है? तो एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है ताकि यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं इनके बीच के वो दूर किए जा सके। ठीक है, ईस्ट वाले कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश वाले कहेंगे कि हम आपका टाइम क्यों मांगने, ये वाले वेस्टर्न साइड कहेंगे हम आपका टाइम क्यों माने, है ना। अगर हमने यहाँ के हिसाब से घड़ी में सेट कर दिया कि जो है सन राइजेज एट 4 o'clock,
वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ तो अभी अंधेरा है, हमारे यहाँ तो 6 बजे राइज होता है, हम तो उस हिसाब से चलेंगे। तो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, वी नीड अ यूनिफॉर्म टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म टाइम फॉर एयरलाइंस, है ना, यूनिफॉर्म टाइम फॉर ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग। तो ये सारी एक हम चाहते हैं थ्रू आउट द इंडिया एक यूनिफॉर्म टाइम हो, ताकि उस टाइम पे सभी लोग अपना काम करें। ठीक है, तो काम क्या होता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। So to avoid this confusion, we took 82 degree 30 minute east as a standard meridian. This one is a standard meridian. meridian. ठीक है, this one is the standard meridian. 82 degree 30 minute east. यहाँ पे यूपी में एक जगह है मिर्जापुर, ठीक है, वहीं से टाइम लिया गया है और वही टाइम थ्रू आउट द इंडिया क्या किया जाता है, माना जाता है। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्जापुर यूपी। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है कि वाई वी टुक 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एज एन स्टैंडर्ड मेरिडियन? We took it as an standard meridian because we want to avoid confusion. ठीक है, we need a uniform time for railways, transportation, मतलब transportation में आ गया communication, okay, broadcasting. So that's why we took standard meridian. ठीक है, और प्लस अगर आप देखो 82 डिग्री 30 मिनट, तो अगर आप डिवाइड, अगर किसी के बीच में झगड़े को हमें रिजॉल्व करना है तो क्या करते हैं, 30 डिग्री का है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, है ना। तो ये कह रहे हैं हम आपका नहीं मारेंगे, ये कह रहे हैं हम आपका नहीं मानेंगे, तो ऐसा करते हैं 15 पे ले आते हैं। तो इनका 15 यहाँ पे आ जाएगा, इनका 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर इस पे 15 ऐड करो तो लगभग 83 के अराउंड आएगा 68 में। यस सर, आएगा, सभी बच्चे बताएं, 68 में 15 ऐड करेंगे तो 83 के अराउंड आएगा। यस सर। 97 में से 15 अगर आप रिड्यूस करेंगे तो नियरली 83 आएगा। यस सर। सो दैट्स व्हाई, ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन वी टुक 82 डिग्री 30 मिनट इज इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है? पहले ये बताओ जितना भी। यस सर। ओनली वन स्टूडेंट इज Yes, सेइंग sir. कंसिस्टेंटली यस। व्हाट अबाउट द रेस्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये देखिए याद करने वाली चीज है, बट मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एकदम क्लियर बताओ। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दो। यस सर। यस सर, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड है ना? अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना आपकी ओवरऑल जो कंटेंट पे? शैल आई मूव फर्दर? यस सर। चलिए, अच्छा इसमें अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यस। Someone is saying something, बताइए। Latitudinal extent influences the duration of the day and night as one move from south to north। किसी बच्चे के पास इसका आंसर है? भाई किसी बच्चे के पास इस चीज का आंसर है कि हाँ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वाई? या कन्याकुमारी टू कश्मीर। Why this happens? Why the duration of day and night influences, okay, or get influenced while we move from south to north? Anybody will try? Sir, because Earth is tilted at 23 degree, no, 23 degree, and so sunlight जो है वो पहले नॉर्थ पे आती है, बाद में साउथ में। अरे ये साउथ है और ये क्या है? नॉर्थ है ना? ये साउथ है आपका, ये नॉर्थ है।
हमने साउथ से नॉर्थ की बात की, तो साउथ वाले केस में क्या है, द सदर्न इंडिया, ओके, द सदर्न इंडिया इज नियर द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिखेंगे, मॉड्यूल में आंसर होगा इसका, नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर, so experiences more sun rays. Northern India is far away from equator, so experiences less sun rays. So this is the basic difference. Okay, so what you will find, जो equator है, equator, इक्वेटर पे सन का रेज मोर और लेस ज्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर। तो इंडिया आपका नियरली यहीं कहीं पे है, तो दिस पोर्शन इज नियर टू इक्वेटर, इट मींस दैट इट विल एक्सपीरियंस डे लाइट, ओके, और मोर सन रेज, ज्यादा सन रेज होगा तो क्या होगा, डे लाइट ज्यादा होगी, तो डे लाइट ज्यादा होगी तो इट विल मींस डेज विल बी लॉन्गर एंड नाइट विल बी शॉर्टर। और जैसे सन रेज आगे बढ़ते, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सन की रेज क्या होती है, टिल्टेड, ठीक है, स्लैंट हो जाती है, होती है स्लैंट, जैसे कि किसी बच्चे ने कहा टिल्ट होती है अपने एक्सिस पे। यस सर। तो उससे क्या होता है कि फिर रेज कम हो जाते हैं, जब रेज कम होता है तो एक ऑब्वियसली क्या होता है, सन जो है कि आपके नाइट्स लॉन्गर होते हैं और डेज शॉर्टर होते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. Someone सर is saying आपने something. साउथ में क्या लिखा है सर, इज Near the equator. आप लिख लोगे सदर्न इंडिया इज नियर द इक्वेटर, ओके, सो एक्सपीरियंस मोर सर सन आपने रेज। साउथ में क्या लिखा है सर, इन ईयर Is near the equator, so experience more sun rays. So in south, more days, more daylight. यहाँ पे less daylight. या ऐसे लिख दो, duration of day is longer in south, duration of day is shorter in north. Okay, as we move from south to north. चलिए, तो अब आई थिंक यू ऑल हैव रिटन दिस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने ट्रॉपिक नो ऑफ सर कैंसर। अभी नहीं लिखा। जल्दी लिखो। अब लगभग आप देखो, ड्रॉ तो सही से नहीं है, फिर भी इक्वेटर लगभग ऐसे ही पास करती है, ओके। समवेयर कुछ ऐसे ही आगे चलते हैं, ओके, सीधा नहीं है, करेक्ट नहीं है, बट यस समवेयर ऐसे ही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया था 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू कितने स्टेट से पास करते हैं बताइए? 8 स्टेट्स। कितने स्टेट से? 8 स्टेट से। लिख लीजिए, पिछले बार इस बार जीएसटीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस बार के जीएसटीएससी एग्जाम में आया। ओके, कौन कौन से स्टेट है, कोई जानता है आप में से? कोई जानता है? सर गुजरात, महाराष्ट्र। वेट, गुजरात और महाराष्ट्र भी है? यस सर। सर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 3 2 5। वेस्ट बंगाल भी है? यस सर। यस सर। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, Mizoram. मिजोरम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना है आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी। चाहिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं हर क्लास में क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, आप लोग इसको याद करके आइएगा। डीपीपी आप लोगों को भी मिल जाएंगी थोड़ी देर में, आप देखोगे आपके ऐप पे,
तो डीपीपी सॉल्व करनी है और आपको हर क्लास पे डीपीपी मिलेगी सोशल में। बहुत सारे डेटा रहेंगे आपके पास। आपको क्या करना है, डीपीपी को लिख के क्वेश्चन सेपरेटली उसको तैयार करना है ताकि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भ्रमाण हो, ठीक है, या ढेर लगे हो। ठीक है, आपको हर एक क्लास में मिलेगी और हर क्लास के बाद उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये लिख लीजिए। आई थिंक सभी ने लिख लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, नाउ द टाइम हैज कम टू। अब मैंने स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बताया था अभी। क्या बताया था? स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बताया था। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने स्टेट से पास करते हैं बताइए? मिर्जापुर। 5 स्टेट। सर 5। इट पास 5 स्टेट्स। लिख लो। स्टैंडर्ड मेरिडियन हो पिछली बार हो सकता है कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर से पूछ लिया, इस बार हो सकता है आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन से पूछ लिया। तो इट्स यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर हुआ जो भी मैं बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं। अब यहाँ पे एक अब पॉइंट और आ रहा है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड एक दूसरा टॉपिक है। तो इंडिया एंड वर्ल्ड में आप देखोगे छोटा सा मैप बना। सर फोटो दिखाई नहीं दे रही। ऐसी फोटो हम करवा सेफ रहे इन है कि शीश की। ये ठीक है। आपको ये आप दिख नहीं रहा है जो भी मैं बना रहा हूँ? तो दिख रहा है। नो सर। सर दिख रहा है सर, ये एक देख। तो ऑस्ट्रेलिया की है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अ, ये वाला क्वेश्चन है बेटा। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड में हम लोग आ गए थे और मैंने ऐसे कुछ बनाया था। ओके, तो अब देखते हैं। ये वाला पार्ट आपका यूरोप वाला पार्ट है, आप सभी जानते हैं। ये आपका रशिया है, यहाँ पर यहाँ आप जानते हो चाइना है, ये आपका मिडिल ईस्ट है, सर आप जो बना रहे हो ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये सभी को मालूम होगा। ये साउथ ईस्ट एशिया है। यस सर। मैं जो बना रहा हूँ सभी को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। सभी बच्चे? सर मुझे नहीं दिख रहा। ये नॉर्थ अमेरिका है। एक बार फिर से रिज्वाइन करो। एक साउथ अमेरिका है। ये कौन सा ओशन है फटाफट बताओ? अटलांटिक ओशन है। ये कौन सा सी है बताओ? ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक। तो पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। ओके, यहाँ पे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है?
अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये सब जानते हो ना सभी लोग, यस सर। है ना? यस सर। 7 कॉन्टिनेंट्स आई थिंक यू ऑल नो, यस सर। यस सर। तो अब इसमें देखो हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे एक सी है, विच सी इज ओवर हियर, कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन दिस? कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। विच वन इज मेडिटेरेनियन सी? तो मेडिटेरेनियन सी, अब यूरोपियन क्या करते थे व्हेन दे यूज्ड टू कम ओवर हियर इन इंडिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और एशिया, तो वो ऐसे रूट लेके आते थे, फ्रॉम दिस रूट दे यूज्ड टू कम, ओके, दिस इज अ लॉन्ग रूट। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने यहाँ पे एक कैनाल बनाया 1869 में, एक कैनाल यहाँ पे बनी, इसका नाम है आपका स्विस कैनाल। कौन सा कैनाल है ये? स्विस कैनाल। किस ईयर में? 1869, ठीक है? तो द डिस्टेंस कितना रिड्यूस हुआ था? द डिस्टेंस बिटवीन 7,000 kilometers. हाँ, वेरी गुड। द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप 7,000। reduced by 7,000। ये शॉर्टकट है, बाईपास के लिए, ठीक है? ऐसे नहीं घूम के यहीं से निकल गई, फिर जाके सीधे यहाँ इंडिया में आ गए, ठीक है? और वहाँ पे बना दिया गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में देखते हो गेटवे ऑफ इंडिया भी है, देखा है किसी ने? यस सर। नो सर, देखा नहीं। यस अब सर। देखो, अब ये देखो अफ्रीका, ठीक है? अब यहाँ पे इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई इंडियन ओशन इज नोन एज इंडियन ओशन? बिकॉज सबसे ज्यादा कोस्ट किसका है, कोस्टल लाइन किसका है? इंडिया का, क्या ठीक है? तो ये आप आंसर लिख लोगे ना सभी लोग कि इंडियन ओशन, इंडियन, हाँ, इंडिया का कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है। अब क्या है कि इस एरिया को, इस पोर्शन को, ठीक है, इस कंट्रीज को, यूरोप को, अफ्रीका को, मिडिल ईस्ट को, ठीक है, ये यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है? दे ट्रैवल, ठीक है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग? ट्रेड। क्या है ट्रेड? मेन पर्पस ट्रेड। तो इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन दिस इंडियन ओशन, ठीक है? इंडिया का क्या है कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। यहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है, फिर यहाँ पे जापान भी है, आगे से देखोगे फिलीपींस है, वियतनाम है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड का पर्पस है। तो व्हाट विल हैपन, ये कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन कनेक्ट्स यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, है ना? तो इट इज इंडिया इज ऑन अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन, ठीक है? इंपॉर्टेंट पोजीशन कह लो या स्ट्रैटेजिक पोजीशन कह लो, ठीक है? तो यहाँ पे बस्टी ट्रेड, ठीक है, यू विल फाइंड दैट इट इज रिटन इन अ बुक, बस्टी ट्रेड, बिजी ट्रेड ऑफर्स। यहाँ पे एक आपका आइलैंड भी है, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है? यहाँ से लोग सिंगापुर जाते हैं, तो मतलब लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इज ओवर हियर, ओके, एज वेल एज मार्केट भी है। तो यहाँ का सामान यहाँ बिक रहा है, यहाँ का सामान यहाँ बिकता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होते रहता है, ठीक है? टू एंड फ्रो क्या होते रहता है? मूवमेंट होते रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो इंडिया इन बिटवीन पड़ जाता है, तो इट्स सो दैट इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन। और इंडिया का जब स्ट्रैटेजिक पोजीशन होता है तो इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक पोजीशन, ठीक है? इन व्हाट वे इट टेक्स द एडवांटेज, कि भाई अगर आप यहाँ से आ रहे हैं यहाँ सामान बेचने के लिए तो लेट मी नो, फिर इनको भी कुछ चाहिए होता है तो मंगवा लेते हैं अपने लिए, ओके? या तो फिर यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, हो सकता है उनको इंडिया से कुछ चाहिए होता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, तो इंडिया से खरीदेंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ जाएंगे। या तो फिर यहाँ वाले कहेंगे कि भाई हमें देखो इंडिया से भी कुछ चाहिए, आपसे तो ले रहे हैं, इंडिया से भी कुछ चाहिए, तो आप क्या करना, अपने शिप को ले आना, यहाँ पे रोकना, और फिर वहाँ इंडिया से लेके यहाँ पे लेके आना। मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में, ठीक है? तो दैट्स वाई, और कोस्टल लाइन भी सबसे ज्यादा है, तो दैट्स वाई इट इज इंडियन ओशन इज नोन एज इंडियन ओशन, एंड इंडिया took the advantage of it, ठीक है? Take the advantage of being the largest coastal line on Indian Ocean, of having the largest coastal line on Indian Ocean। समझ में आ रहा है ये पॉइंट आप सभी को, इंडिया एंड द वर्ल्ड का? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है? नो सर। कोई पूछना है? लिख लोगे इसका आंसर? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो, मतलब मैं रब कर रहा हूँ इसको,
तो कहाँ गया आपका? यस। तो अगर आप देखें तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, अब लिखने वाली बात है। लैंड रूट्स हमारे ओल्डर हैं देन सी रूट, या पढ़ा होगा आपने। लैंड रूट हमारे क्या हैं? ओल्डर हैं देन सी रूट। मतलब हम लोग बहुत पहले इससे क्या करते हैं, ट्रेड करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है सी रूट जब आया तो हमने लैंड जो है कि फिर ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प करता था? ट्रेड टू यस सर। प्लेस फ्रॉम डिफरेंट नेशन। ठीक है, और नदन साइड में अगर आप देखो तो इंडिया में नदन साइड में क्या है? जो फाइन के हिमालय है, जानते हो ना क्या है नदन साइड में? हिमालय। तो हिमालय को क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। कैसे क्रॉस होता था हिमालय? ये थोड़ा सा अटपटा सा बन गया, बट नेवर माइंड। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ पासेज। क्या है? नंबर पासेज। ऑफ। पासेज है। तो अब जैसे कौन से? रोहतांग पास है, रोहतांग पास है। ठीक है, और कोई पास बताओ आप? नसला पास, लिपू लेक, इस तरह के नंबर ऑफ पासेज। तो ट्रेड किससे होते थे? पासेज से होते थे। ओके, तो हमारे यहाँ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते थे, कमोडिटीज की होती थी। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज में क्या थे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका, आप लोग बताइए क्या है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और कमोडिटी? कुछ याद है आप लोगों को? सर जैसे किसी एम्प्लॉय को आइडिया आया तो उसने कंपनी को बताया। रामायणा के बारे में डिस्कशन हुआ। स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, आप लोगों ने छोटे में ये मूवी यस सर, देखिए स्टोरीज देखी होगी, सर। पढ़ी भी पढ़ी होगी। बुक्स पढ़ी हैं सर। इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, हमने ये क्या किया, अपने यहाँ की चीज़ों को वहाँ पे भेजा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने भेजा भी है, हमने क्या किया है, दूसरी जगह से कुछ सीखा भी है। हमारे यहाँ भी आया है। क्या आया है? मतलब अलग अलग जगहों से क्या क्या आया है, व्हाट वी। तो इसमें सर इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें मुस्लिन भी ऐड कर लो। मुस्लिन इज अ कॉटन फाइबर। स्पाइसेस, मसाले, आप जानते हैं हमारे यहाँ के मसाले बहुत फेमस। यस सर। सर आयरन और भी होगा ना? आयरन, बट इसमें उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत पुराने की बात हो रही है। अब इसमें वी टुक वे got to know, or we can see the influence of, किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं हम इंडिया में? डोम, डोम लाइक आर्किटेक्चर, जो कि मिडिल ईस्ट में होता है, यहाँ होता नहीं था, यहाँ पे भी है। देखा आप लोगों ने डोम लाइक आर्किटेक्चर? हेलो, यस सर आवाज देखा आ है। रही है आप लोग? यस सर देखे हैं। ठीक है, या फिर इसको आर्किटेक्चर ना लिख के डोम लाइक स्ट्रक्चर लिखो। फिर उसके बाद ग्रीक कल्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीक कल्चर, इन सब का जैसे भी क्या है पढ़ाया तो हमारे इंडिया में? सर। ये सब क्या है इंडिया में इन्फ्लुएंस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने
प्रीवियस क्लासेस में 7th कि 8th में पढ़ा था ये डोम हाँ लेक्चर। कि डिफरेंट ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे, जब वो सेटल हो जाते थे तो वो क्या करते थे, अपने यहाँ का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, तो उसको क्या उसके करते थे, हाँ उसके बेसिस पे अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कराते थे। जैसे मिडिल ईस्ट से लोग आए, यहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, है ना। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ऐसे आ रहा है। Yes, ओनली sir. वन स्टूडेंट इज सेइंग Yes, यस, sir. व्हाट अबाउट द रेस्ट? ये जो लैंड रूट्स हैं, हाँ जैसे जो हमने जो ये ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई लैंड रूट से, हम्म, तो सब वो पहाड़ों से पासेस बना के जाते थे। हाँ पास पहाड़ों से ही बनता था, ठीक है, या फिर किसी दो पहाड़ के बीच में स्पेस है तो वहाँ पे पास बना लिया, या पहाड़ों के बीच में से जगह बना लिए, ठीक है, तब वहाँ से निकल गए थे। ओके सर। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? यहाँ पे एक चीज और छोड़ दो, मीनारेट्स भी है, मीनार वगैरह भी देखो। कुतुब मीनार देखा है आपने? कुतुब मीनार Yes, sir. यस सर। सर देखा है। कितनी हाइट है कुतुब मीनार की, बताइए अगर देखा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में ये खोज के लाइएगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है। सर अब कुछ आते हैं, 170 मीटर्स थी, अराउंड 170 नहीं नहीं meters। नहीं नहीं नहीं, गलत है, ठीक है, चेक करके आइएगा। तो वेस्ट एशिया का इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ मैंने बता दिया। अब आ जाओ नेबरिंग, फिगर फिर से क्या कह रहे हो? सर एक बार फिर से दिखा दो फिगर। कुतुब मीनार की हाइट थिंक 70 to 80 के अराउंड थी। हाँ 72.5 है। और वो एग्जैक्टली सर याद नहीं है। याद करके आइएगा नेक्स्ट क्लास। सर 73। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Sir, 70. क्या करेंगे? सर 73। 73 मीटर है या 72.5 मीटर है? सर 73 मीटर। कंफर्म? हो सकता है आप, यस सर। हो सकता है आप जहाँ से देख रहे हो वो सही ना हो, एक बार फिर से खोलिए उसको। नो सर, ये 5th क्लास के सर मेधावी में आया था। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से इसको गूगल पे करिएगा, फिर आप बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। अब आते हैं हम लोग कंटेंट पे आते हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज, अब देखो ये तो बहुत इजी है, ठीक है। कितने टोटल स्टेट एंड यूटीज हैं हमारे इंडिया में अभी करेंटली? चलिए ये बता दो सबसे पहले। 29 स्टेट्स एंड 28 states, 9 union territories. यस सर 9 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स हैं आपके और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, लिख लो। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब आते हैं नेबरिंग स्टेट में। नेबरिंग स्टेट में हमारे नॉर्थ में, ओके, नॉर्थ वेस्ट में कौन है हमारे? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, नॉर्थ में हमारे कौन है, कोई बताएगा? चाइना, तिब्बत ऑक्युपाइड, फिर भूटान एंड नेपाल, है ना। ईस्ट में हमारे कौन है? बांग्लादेश एंड म्यांमार, जानते हो ना म्यांमार को। फिर साउथ में कौन है हमारे? श्रीलंका श्रीलंका एंड मालदीव। मालदीव। टोटल कितने हैं? 9। याद है टोटल कितने हैं? 9। अब इसके बाद इंडिया को अगर आप देखो तो साउथ में यहाँ ये आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पे एक इंग्लिश, यहाँ पे एक चैनल है, एक स्ट्रेट है जो इंडिया और साउथ श्रीलंका को डिवाइड करता है। तो इंडिया
एंड श्रीलंका का जो सेपरेशन है वो किसके थ्रू है? दो स्टेट है, एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नार एंड दूसरा है आपका पाक स्टेट। गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरा क्या है? पाक स्टेट। यहाँ पे लक्षद्वीप, तो सब लक्षद्वीप आपका किसका है? लक्षद्वीप जानते हो, यूटी है ये लक्षद्वीप। So it is south mark. Okay. यही है आपका इस चैप्टर में। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. श्योर? यस कर दूं मैं? सर। वेट। फटाफट लिख। नो राइट इट डाउन फास्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर डन। ओके, वेरी गुड। सर हाँ जी बताइए। यस आई एम लिसनिंग, बताइए क्या कह रही हैं? सर आपके पास सर इस लेक्चर का सर रिकॉर्डिंग है? ये आपके लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ये आपको मिल जाएगा आपके ऐप पे। ओके, किसने क्वेश्चन ये पूछा है? क्या नाम सर बताइए। इकाई आपको से मिल जाएगा तो हाँ रिकॉर्डिंग? हाँ 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 बिल्कुल, आप एडमिन में एक बार बात करिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, किसने पूछा है? नंदिनी ने पूछा है, निधि ने पूछा है, किसने पूछा है? ज्योति सिन्हा। चलिए, सभी को समझ में आया जो भी मैंने आज पढ़ाया? यस सर। एक बहुत ही यस सर। इजी चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर था, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड था और मैंने मोर और लेस सारे कंसेप्ट जो भी रिक्वायर्ड थे इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिए। नाउ इज दिस क्लियर टू ऑल? एक फाइनल अब बता दूं, सभी को समझ में आ गया है? सभी बच्चों Yes, को समझ sir. में आ गया है? Yes, sir. यस सर। कुश, कौशिक, चिराग, यस प्रियंका। सर। ओके, कुश, कौशिक, यस सर। चिराग, सिन्हा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। प्रियंका, बाघेल। यस सर। ओके ओके। यस सर। चिराग, आपकी और आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है। चिराग, समझ में आ गया? चिराग सिन्हा। ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एक आसान सा चैप्टर था, डीपीपी आप लोगों को आज मिलेंगी, उस डीपीपी को आप लोग जो है करेंगे और उसके क्वेश्चन सारा नोट डाउन करेंगे आप लोग, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इसी चैप्टर का एक दूसरा, इसी बुक का एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे फिर ये फर्दर हेल्पफुल होता है। सभी बच्चे डीपीपी जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर एक बात पूछनी थी। हाँ सर बताइए। डीपीपी 1A ही करनी है ना अभी तो सर? हाँ, इंडिया साइज एंड लोकेशन का आएगा डीपीपी आपके लिए, आप ओके सर। आपको गाइड किया जाएगा और आप उसको सारा सॉल्व करिएगा और सारा क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ठीक है? चलिए, ओके, मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट। मैं सर गुड नाइट सर।